Good morning, dear students. Today we are going to discuss our next topic, that is role of nurses in genetics. We have started the topic, that is application of genetics in nursing. In this we have already discussed about the scope and historical milestones in genetics. And today we are going to discuss the next topic, that is role of nurses in genetics. So what are the roles of nurses in genetics that we are going to discuss? So let's start the topic. First is definition. What is genetic nursing? Okay, so what is genetic nursing? Genetic nursing is a holistic practice that includes assessing, planning, implementing and evaluating the physical, spiritual, ethical and psychosocial aspects of patients and families who have genetic concerns. That means जेनेटिक नर्सिंग का डेफिनेशन क्या है? जेनेटिक नर्सिंग इज़ अ होलिस्टिक प्रैक्टिस. होलिस्टिक प्रैक्टिस दैट मीन्स, होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल केयर. दैट मीन्स physical, mental, spiritual as well as genetic care. Means holistic means overall, the comprehensive practice in which everything are included. Okay, that includes assessing. Firstly, in genetic nursing, firstly what is the procedure? First we are assessing the condition or assessing the client. Planning. After assessing the disease, after assessing the conditions, what we are doing? We are planning to provide the care. Okay, after planning, what we are doing? We are implementing whatever planning, whatever care we have planned for the client, for the patients, that we are implementing in the patient. Okay, and next is evaluating. After implementation of the care, what is the result? What result we have got, or what evaluation we are doing, what result we have got after that care. Okay, the physical, spiritual, ethical and psychosocial aspects of patients and families. That means overall care related to their physical, spiritual as well as ethical. That means related to their rights, law, and psychosocial, that means psychological status as well as social status of the patients and families who have genetic concern. Those who are having any kind of the genetic disorder, problem, or they can have the genetic problems, all these are considered under the genetic nursing care. Okay, next is role of nurses in genetics. What are the role the nurses are playing in the genetic field? Okay, so what are the roles of nurses? First is taking comprehensive and relevant family histories. That means first and foremost thing, this you have already studied, also studied in the nursing foundation, that first and foremost thing is taking the history of the patient. Okay, so here also in the genetic field also, first and foremost thing is the nurses are taking the comprehensive and relevant family histories. Comprehensive means overall history is taken, that is physical history, medical history, surgical history, sociological history, or any kind of the genetic history. Okay, overall history is taken. Next is assessing needs and interactions in clients and families affected by genetic disease. Okay, then what nurses are doing? They are assessing the needs and interactions in clients and families affected by genetic diseases. That means nurses क्या करते हैं? Nurses assess करते हैं कि क्लाइंट का क्या नीड है, पेशेंट का क्या नीड्स है, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, आईपीआर मेंटेन करते हैं. दैट मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके, इंटरेक्शंस करके एसेस करते हैं कि क्लाइंट का क्या नीड्स है. फैमिलीज़ अगर अफेक्टेड है जेनेटिक डिसीजेस से, तो किस तरह का जेनेटिक डिसीजेस उनके फैमिली में है या उनके एंसेस्टर्स में था. ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें नर्सेज एसेस करती है। नेक्स्ट, एसेसिंग द क्लाइंट एंड फैमिलीज कल्चरल एंड एथिकल हेल्थ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे रिलेट टू द जेनेटिक प्रॉब्लम। दैट मीन्स नर्सेज और क्या करती है, नर्सेज एसेस करती है पेशेंट को, क्लाइंट को और उनके फैमिली को, ठीक है। फैमिली का जो भी कल्चरल है, ठीक है, जो भी उनका कल्चरल बैकग्राउंड है, जो भी उनके कल्चरल या रिचुअल्स जो भी हैं या कल्चरल बिलीव्स जो हैं, ठीक है, एज वेल एज द एथनिक हेल्थ बिलीव्स। मीन्स हेल्थ से रिलेटेड उनके क्या क्या बिलीव्स हैं, ठीक है, और वो किस तरह का प्रैक्टिसेस करते हैं, किस तरह का हेल्थ प्रैक्टिसेस करते हैं जिसके कारण से हो सकता है कि उनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स कॉज होते आ रहे हों और उनको वो चीज़ पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नर्सेज एसेस करती हैं कि फैमिली में फैमिली का जो कल्चरल बिलीव्स है, उस कल्चरल बिलीव्स के कारण जो भी वो हेल्थ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि उनका जो कल्चरल बिलीफ हो वो नेगेटिव हो, ठीक है, या सही नहीं हो, जिसके कारण से क्या हो रहा है, जो भी वो हेल्थ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हो सकता है जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई डिसीज़ है तो वो मानते नहीं है कि कोई फैमिली मेम्बर्स या किसी कल्चरल बिलीव्स में वो बिलीव नहीं किया जाता है कि इस तरह का डिसीजेस है और उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, तो प्रॉपर टाइम पर उनको मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पाता है, मेडिकल केयर नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसके वजह से हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स में वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स ट्रांसमिट हो रहे हों जनरेशन टू जनरेशन। किसके वजह से, प्रॉपर मेडिकल केयर या मेडिकल अटेंशन नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि वो स्टीरियोटाइपिंग बिलीव से स्टीरियोटाइपिक थिंकिंग रखते हैं। दैट मीन्स अंधविश्वास रखते हैं हेल्थ को लेकर के कि इस तरह का कोई बीमारी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो आप सुने होंगे ना, जो सिरहा गुनिया इन लोगों के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक। प्रॉपर मेडिकल अटेंशन, मेडिकल केयर टाइम से मिलना ज़रूरी है ताकि किसी तरह का आगे जा कर के कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या जेनेटिक इशू डेवलप ना हो। तो ये सारी चीज़ें नर्सेस एसेस करती है, पेशेंट में एसेस करती है, एज वेल एज पेशेंट के फैमिली का जो भी कल्चरल बिलीव्स है या कल्चरल बिलीव्स के कारण जो भी वो हेल्थ प्रॉब्लम्स या हेल्थ प्रैक्टिसेस जो वो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम फैमिली में है या आगे फ्यूचर में हो सकता है, ये सारी चीज़ें नर्सेज एसेस करती हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मैनेजिंग एंड इवेलुएटिंग स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग प्रोग्राम। नर्सेज ऑल्सो हेल्प्स इन दी प्लानिंग। ओके, वो प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट, और अपने प्लानिंग को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एज वेल एज मैनेज करके चलते हैं सारी चीज़ों को एक साथ। आफ्टर दैट क्या करते हैं, वो इवेलुएट करते हैं कि जो भी जेनेटिक टेस्टिंग्स हैं या जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़, जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ आए हैं या न्यू जेनेटिक टेस्टिंग प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं या जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड या जेनेटिक स्क्रीनिंग और टेस्टिंग से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों को वो मैनेज करके चलती हैं, प्लानिंग करती है, फिर उसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, आफ्टर दैट फिर इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉलो अप ऑन पॉजिटिव न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू क्लाइंट्स विथ पॉसिबल जेनेटिकली रिलेटेड कंडीशन। दैट मीन्स नर्सेज जो है वो न्यूबॉर्न का स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग दैट मीन्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। मदर्स का भी स्क्रीनिंग किया जाता है, दैट इज़ प्री नेटल जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है। दैट मीन्स प्री नेटल, दैट मीन्स मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, एंड चाइल्ड का अभी तक बर्थ नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में उस स्टेज को क्या बोला जाता है, प्री नेटल। ओके, तो मदर के प्रेगनेंसी स्टेज में ही अगर ऐसा लगता है कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज़ हो सकते हैं या कुछ भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं चाइल्ड में, तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, प्री नेटल टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। एज वेल एज जब चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है, जब न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं तो न्यू बॉर्न बेबी का भी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। एंड क्लाइंट्स या फिर पेशेंट्स जो भी हैं उनको इंटरव्यू किया जाता है, क्लाइंट्स को, विथ पॉसिबल जेनेटिकली रिलेटेड कंडीशन, उनसे भी हिस्ट्री लिया जाता है, फैमिली से भी हिस्ट्री लिया जाता है कि उनके फैमिली में कभी भी किसी तरह का कोई
जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो नहीं था। ठीक है, हो सकता है कि सिकलीन होगा फैमिली मेम्बर्स में किसी को, लेकिन अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ होगा कि उनके फैमिली मेम्बर में सिकलीन का प्रॉब्लम है, या उनके फैमिली मेम्बर में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में या पेरेंट्स में हो सकता है डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था होगा, बट अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। और जस्ट न्यू बॉर्न का बर्थ हुआ है, और अगर उसमें डिटेक्ट होता है किसी तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम, मान लो न्यू बॉर्न में डिटेक्ट हुआ कि न्यू बॉर्न को सिकलिंग प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, या फिर कोई कंजेनाइटल या क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज़ है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया, और बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे किस में कंसिडर होते हैं? डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें अकर होती है, और ये आफ्टर द बर्थ ये डिटेक्ट होता है चिल्ड्रंस में। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन दिखता है नर्सेस को, तो वो नर्सेस स्क्रीनिंग कर सकती है, दैट मीन्स टेस्टिंग कर सकती है न्यूबॉर्न का, फैमिली हिस्ट्री ले सकती हैं कि उनके फैमिली में कभी इस तरह का कोई डिसऑर्डर या डिसीजेस तो नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग क्लाइंट्स विथ जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाई प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अ जेनेटिक कंडीशन, एज वेल एज नर्सेस क्या करती हैं? मॉनिटर करती हैं, टाइम टू टाइम मॉनिटर करती हैं, इवेलुएट करती हैं पेशेंट्स को, किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं था, ठीक है, या किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज तो नहीं हो रहा है किसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये सारी चीज़ें को पहले ही मॉनिटर किया जाता है, असेस किया जाता है, क्लाइंट को इवेलुएट किया जाता है कि किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर अराइज हो रहा है या होने वाला है तो उसको पहले से ही डिटेक्ट किया जाता है कि किस तरह का जेनेटिक कंडीशन से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग केयर एंड सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स और फैमिलीज अफेक्टेड बाय जेनेटिक कंडीशंस, मैनेजिंग होम केयर एंड थेरेपी फॉर द अफेक्टेड पर्सन, दैट मीन्स सारे केयर को कोऑर्डिनेट करके नर्सेस चलती है। ठीक है, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक केयर नर्सेस प्रोवाइड कर रही है, तो सारे केयर को वो कोऑर्डिनेट करके चलती है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके सारा केयर, सारा सर्विसेज प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को, जो भी इंडिविजुअल्स है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, जो भी अफेक्टेड है किसी तरह का जेनेटिक कंडीशन से या किसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स से। ठीक है, जिस उस तरह से मैनेज करती है, होम केयर भी प्रोवाइड करती है, एज वेल एज थेरेपी भी प्रोवाइड किया जाता है। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसीजेस से अफेक्टेड पर्सनस है उनको होम केयर भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज थेरेपी भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग हेल्थ टीचिंग्स एंड एजुकेशन रिलेटेड टू जेनेटिक्स, नर्सेज और क्या रोल प्ले करती हैं? वो हेल्थ टीचिंग्स में हेल्प करती है, हेल्थ टीचिंग्स एंड हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड या जीन से रिलेटेड या किसी भी तरह का जेनेटिक डिसीजेस से रिलेटेड जो सोसाइटी में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हो सकता है कि प्रेजेंट हो, बट पीपल्स अवेयर नहीं है उस चीज़ से लेकर के या जेनेटिक डिसऑर्डर से। इसलिए नर्सेस का रोल क्या होता है? वो हेल्थ टीचिंग्स प्रोवाइड करती है, एजुकेट करती है पब्लिक को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को, पेशेंट्स को, उनके फैमिलीज़ को रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ दी जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक प्रॉब्लम्स या फिर जेनेटिक्स होता क्या है, ये सारी चीज़ें नर्सेज जो है हेल्थ टीचिंग्स या हेल्थ एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज सर्विंग एज एन एडवोकेट फॉर अ क्लाइंट एंड फैमिली अफेक्टेड बाई अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, नर्सेज जो है वो एज अ एडवोकेट के जैसा भी काम करती है, किनके लिए? अपने क्लाइंट के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, एज वेल एज उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए जो जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। हियर एडवोकेट, दैट मीन्स एडवोकेट का मीनिंग इन हिंदी होता है वकालत या फिर वकील। ठीक है, बट यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि नर्सेज जो है वो राइट डिसीज़न लेने में हेल्प करती है पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को राइट डिसीज़न लेने में हेल्प करती है, उनको उनके राइट से अवेयर करवाती हैं, एंड एज वेल एज जो भी राइट पाथ है या राइट डिसीज़न है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें नर्सेज हेल्प करती हैं अपने पेशेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स को कि किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो क्या राइट डिसीज़न ले सके अपने फैमिली के लिए और पेशेंट के लिए।
नेक्स्ट, डेवलपिंग एन इंडिविजुअलाइज्ड प्लान ऑफ केयर इंक्लूडिंग एंटिसिपेटरी गाइडेंस फॉर अ पर्सन विद अ जेनेटिक कंडीशन। दैट मीन्स नर्सेज और क्या करती हैं, इंडिविजुअलाइज्ड प्लान ऑफ केयर डेवलप करती हैं। दैट मीन्स हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग, हर एक पर्सन का जेनेटिक कंडीशन या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है, अलग अलग हो, तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स, ओके, सो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नर्सेज आर डेवलपिंग इंडिविजुअलाइज्ड प्लान ऑफ केयर। ठीक है, हर एक पर्सन से रिलेटेड, उनके जेनेटिक कंडीशन से रिलेटेड, उनके जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है, उस तरह से नर्सेज जो है उनके लिए प्लान करती है केयर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेनिंग द पर्पस, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स टेस्ट्स एंड रिजल्ट्स। नर्सेज एक्सप्लेन करती है फैमिली मेम्बर्स को एज वेल एज पेशेंट्स को कि क्या पर्पस है, ठीक है, क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, क्या इम्प्लीकेशन है जेनेटिक टेस्ट का, जेनेटिक टेस्टिंग क्यों करवाना चाहिए, जेनेटिक टेस्टिंग किस लिए हेल्पफुल होता है, जेनेटिक टेस्टिंग से क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उनको किस तरह से हेल्प होगा अगर वो जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में नर्सेज जो है वो एक्सप्लेन करती हैं पेशेंट्स को एज वेल एज उनके फैमिली मेम्बर्स को। नेक्स्ट, रीएनफोर्सिंग एंड इंटरप्रेटिंग जेनेटिक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग इंफॉर्मेशन। नर्सेज जो है रीएनफोर्स करती है और टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करती है जेनेटिक काउंसलिंग। नर्सेज हेल्प करती है जेनेटिक काउंसलिंग में एंड टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में। पेशेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को या किसी या पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी में जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू वो हेल्प करती हैं और टेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को वो पहुंचाती हैं पेशेंट्स तक, उनके फैमिली मेम्बर्स तक, सोसाइटी और कम्युनिटी में। नेक्स्ट, सपोर्टिंग फैमिलीज व्हेन दे अंडरगो काउंसलिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, और नर्सेज क्या रोल प्ले करती है, फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है जब भी वो किसी तरह का जेनेटिक काउंसलिंग से वो गुजर रहे हैं या फिर उनको कभी भी कोई डिसीज़न लेना है और डिसीज़न लेने में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो फैमिलीज़ को सपोर्ट करती है, उनको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करती है एज वेल एज काउंसलिंग प्रोवाइड करती है नर्सेज। Next is recognizing the possibility of a genetic component in a disorder and taking appropriate referral action. That means nurses और क्या रोल प्ले करती हैं, वो रिकॉग्नाइज करती हैं किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर अगर अकर हो रहा है या फिर इन फ्यूचर किसी तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम अकर हो सकता है। ठीक है, तो नर्सेस का रोल होता है कि वो टाइम रहते ही रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पेशेंट्स में, उनके फैमिली मेम्बर्स में, या जो भी न्यू बर्थ होने वाला है चाइल्ड का, उसमें किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर्स या किसी तरह का जेनेटिक डिसीजेस का पॉसिबिलिटी है। तो इसको वो पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेती हैं एंड रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके लिए वो पर्टिकुलर एक्शन लेती हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेती हैं, अप्रोप्रिएट रिफरल एक्शन वो ले सकते हैं। अगर समय रहते ही जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक कंडीशन के बारे में पता चल जाता है तो क्या कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर एक्शन ले सकते हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन हम टाइम रहते ही ले सकते हैं। तो इसमें कौन हेल्प करता है, नर्सेस हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, एलिमिनेटिंग द सोशल इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स ऑन द पेशेंट, फैमिली एंड मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। दैट मीन्स सोसाइटी में, फैमिली में, पेशेंट्स में, कम्युनिटी में जिस भी तरह का एक सोशल इम्पैक्ट है जेनेटिक प्रॉब्लम को लेकर के, दैट मीन्स सोसाइटी में, कम्युनिटी में जेनेटिक प्रॉब्लम्स को उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। ठीक है, मतलब उनको नॉलेज नहीं होता कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी कुछ है, जेनेटिक्स भी कुछ चीज़ होता है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और हमको टाइम रहते ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें पेशेंट, फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो इसमें ये बोल रहा है कि कम्युनिटी या सोसाइटी में सोसाइटी या सोशल इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से पड़ रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक कंडीशंस को इंक्रीज़ करने के लिए या जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी या कम्युनिटी किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सिकलिन। ठीक है, सिकलिन का ये रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो साहू, ठीक है, साहू सोसाइटी से जो रिलेटेड है, ठीक है, साहू आप में से भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का सरनेम साहू हो, सो डोंट माइंड इट, बट
in the researches it is founded that it is a fact, it is one kind of the research, it is a fact that जो साहू कम्युनिटी के जो पर्सन होते हैं उसमें उनमें सिकलीन होने का चांसेस जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक। तो फिर भी क्या होता है कि कॉन्सेंजिनिटी मैरिज आज भी हो रहे हैं। कॉन्सेंजिनिटी मैरिज दैट मीन्स रिलेटिव्स के बीच में ही क्या हो रहा है, मैरिजेस हो जा रहे हैं, ठीक है। और अगर साहू रिलेटेड की सोसाइटी या कोई कम्युनिटी एरिया में कोई सोसाइटी में है और अगर उनका मैरिज जो है चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो वो रिलेटिव्स के बीच में ही हो रहा है, अपने साहू कम्युनिटी के बीच में ही हो रहा है, रिलेटिव्स के बीच में ही हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन, जो चाइल्ड का बर्थ होता है उनमें भी क्या हो रहा है, जो सिकलीन का ट्रेट जो है वो भी ट्रांसमिट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि सोसाइटी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रही है जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, है ना। कॉन्सेंजिनिटी मैरिज के कारण, रिलेटिव्स के बीच में मैरिज के कारण साहू कम्युनिटी के पीपल में सिकलीन देखा गया है बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर उन लोग कॉन्सेंजिनिटी मैरिज कर रहे हैं, अपने ही रिलेटिव्स के बीच में मैरिज कर रहे हैं, तो उनके जो चाइल्ड का बर्थ होता है या जो नेक्स्ट जनरेशन का बर्थ होता है उनमें भी वो सिकलीन का ट्रेट क्या है वो ट्रांसमिट होते जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि सिकलीन जो है वो देखा गया है कि साहू कम्युनिटी के पर्सन्स में बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि सोसाइटी और कम्युनिटी भी क्या कर रही है, एक रोल प्ले कर रही है कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें नर्सेस क्या रोल प्ले करती है, नर्सेस का काम ये होता है कि वो एलिमिनेट करती हैं, एलिमिनेट दैट मीन्स इस तरह का सोच या इस तरह का जो प्रॉब्लम कॉज हो रहा है उसको वो अवेयर करवाती हैं और कोशिश करती हैं कि ये प्रॉब्लम को वो स्टॉप कर सके या प्रिवेंट कर सके, ठीक है। जो भी सोशल इम्पैक्ट के कारण जेनेटिक प्रॉब्लम्स पेशेंट में, फैमिली में, कम्युनिटी में डेवलप हो रहे हैं उसको वो प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक एजुकेशन अबाउट जेनेटिक्स, ठीक। नर्सेज और क्या रोल प्ले करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं पब्लिक एजुकेशन में, वो जेनेटिक्स का हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं पब्लिक्स को इन द कम्युनिटी सेटिंग्स, ठीक, जिससे कि अवेयरनेस आए, जेनेटिक्स को लेकर के अवेयरनेस आए पब्लिक में कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कुछ होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स से हमको, हमारे बच्चों को, आगे के जनरेशन को प्रिवेंट करना है, इसलिए पहले ही हमको जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू, जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू जो भी डिसऑर्डर्स कॉज होने वाले हैं उसको पहले ही हम स्टॉप कर सकें, ठीक है। या अगर किसी तरह का डिसीजेस है, जेनेटिक रिलेटेड डिसीजेस, तो उसका भी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें, ये सारी चीज़ें अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नर्सेज जो है इन सारी चीज़ों का अवेयरनेस प्रोवाइड करती हैं थ्रू जेनेटिक एजुकेशन इन द पब्लिक सेटिंग्स। नेक्स्ट, नर्स में ऑल्सो प्ले अ रोल इन जेनेटिक रिसर्च, ठीक। Nowadays nurses are also playing a vital role, a great role in the nursing research field, okay। So in genetic research nurses जो है जेनेटिक रिसर्च कर सकती है, जेनेटिक रिसर्च कर रही है, जिनसे जो उनसे जेनेटिक रिसर्च से जो भी उनको रिजल्ट मिल रहा है, जो भी इवेल्युएशन मिल रहा है वो हेल्पफुल हो रहा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू या न्यू ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के थ्रू हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को किस तरह से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, नर्सेज कैन ऑल्सो प्रोवाइड सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय और एट रिस्क फॉर जेनेटिक कंडीशंस, दैट मीन्स नर्सेज और किस में हेल्प कर रही है, सर्विलेंस में भी वो हेल्प कर रही है। सर्विलेंस दैट मीन्स होता है सर्वे, ठीक है। नर्सेज जो है वो प्रॉपर डाटा कलेक्शन कर रही हैं, एज अ स्टेटिस्टिशियंस भी वो नर्सेज जो है वो वर्क कर रही हैं, डाटा कलेक्शन कर रही हैं, सर्वे में वो हेल्प कर रही हैं। और जो भी सर्वेस के थ्रू या डाटा कलेक्शन के थ्रू या स्टैटिस्टिकल डाटा जो मिल रहा है नर्सेस को रिलेटेड टू जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और उस डाटा से वो क्या कर रही है, मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है, मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है पर्सन्स को, ठीक है, जो भी अफेक्टेड है या जो भी रिस्क में है जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप करने के लिए। तो सर्वे करके पहले ही डिटेक्ट हो जा रहा है कि इस कम्युनिटी के पर्सन्स या ये फैमिली मेम्बर्स में ये सारे जेनेटिक कंडीशंस है,
तो पहले ही क्या किया जा रहा है, जो भी रिस्क है उन फैमिली मेम्बर्स में या सोसाइटी में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, उस रिस्क को कम किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है अर्ली डिटेक्शन करके। अर्ली डिटेक्शन कब होगा, जब पर्टिकुलर सर्वे किया जाएगा कि किस फैमिली मेम्बर में किस तरह का कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, किस कम्युनिटी में कितना डिसऑर्डर है। तो सर्विलेंस करके, सर्वे करके एक स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट किया जाता है नर्सेस के द्वारा। उसके बाद फिर उस डाटा के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है उस फैमिली मेम्बर को, उस कम्युनिटी को, पर्सन को जो भी हायर रिस्क पे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, nurses can play a role as a advanced practice nurses in genetic counseling and in advanced assessment. Okay, nurses are also playing role as a advanced practice nurses in genetic counseling. advanced practice nurses एक तरह का ये एक कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स बन चुका है। जो एडवांस प्रैक्टिस नर्सेस है वो जेनेटिक काउंसलिंग में डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, और इसके थ्रू जो भी एडवांसमेंट आ रहे हैं जेनेटिक टेक्नोलॉजी में या जेनेटिक्स सब नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं उसको एसेस करके, ठीक है, एडवांस असेसमेंट, पहले से ही एडवांस असेसमेंट करके जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसको क्योर करने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट, नर्सेज कैन ऑल्सो वर्क विद इन अ पर्टिकुलर स्पेशलिटी इन विच जेनेटिक्स प्लेज अ रोल सच एज ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी यूनिट। दैट मीन्स नर्सेज जो है वो पर्टिकुलर स्पेशलिटी में भी वर्क कर रही हैं। दैट मीन्स ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन्कोलॉजी दैट मीन्स कैंसर रिलेटेड डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑन्कोलॉजी दैट मीन्स कैंसर से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट या यूनिट होते हैं उनको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी दैट मीन्स हार्ट रिलेटेड या कार्डियक रिलेटेड डिपार्टमेंट। ओके, सो नर्सेज आर वर्किंग इन दी स्पेशल वार्ड्स, स्पेशल यूनिट लाइक ऑन्कोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी यूनिट. So in this unit genetics problems or related to genetics are very common. Okay, oncology that means cancer related, as I have already told you. कुछ जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर को कॉज करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन से ऐसे जीन्स हैं, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर्स को, ये सारी चीज़ें को स्टडी करने के लिए नर्सेज जो है स्पेशलिटी वार्ड जैसे ऑन्कोलॉजी यूनिट या कार्डियोलॉजी यूनिट में वर्क कर रही हैं और रोल प्ले कर रही हैं जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए, जेनेटिक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स का टेस्टिंग करने के लिए और प्रॉपर टाइम पर केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ओके, सो दीज आर द नर्सेस रोल विच आर हेल्पिंग इन दी जेनेटिक फील्ड। नर्सेस किस तरह से हेल्प कर रही हैं जेनेटिक फील्ड में, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस. Thank you. If any doubt is there, you can ask me personally. Take precautions for COVID-19. Stay safe and stay healthy.